Hi everyone, I'm back regarding my Saint Bernard's health and what I am going to feed him every day for the next 2 months. He's on a strict diet. Unfortunately, he has lost a lot of weight. So what we're doing is we have taken 300 grams of Jules pedigree food, and I'm going to mix in maybe around 200-300 grams of lukewarm milk, and we're just going to let it soak in till it goes a bit soft. अच्छा, पेट फूड के अलावा इस खाने में जो ऐड होगा दैट विल बी 2 बॉइल्ड एग्स एक्सक्लूडिंग द योग एकदम नहीं खिलाना है बिकॉज द वाइट पार्ट हैज़ द कैल्शियम इन इट विच इज़ अ वेरी ईजी डाइजेस्टिबल form of calcium. Hence eggs are always recommended regardless of animals or humans. At the same time, with the pet food, my dog will have one piece of breast that's baked into the diet. Maybe it weighs around 150 grams to 200 grams, not more than that. And with this, इसके खाने में हम लोग ऐड करेंगे maybe around 400 grams of cooked rice. अच्छा, चावल जो हम लोग होम रेमेडी यूज़ करते हैं, we add a bit of turmeric because haldi is definitely an antibacterial, antifungal spice which we always add, and it is always recommended to add it in your pet's diet as well. So चलिए, let's do it. Let's mix the food in and let's give it to our Saint Bernard. By the way, हमारे Saint Bernard का नाम है Leo, but we call him with a lot of different names. Sometimes it's Motu, sometimes it's Gublu. Definitely Leo is there, but every now and then whenever we call him Gublu इधर आओ, वो सुन लेता, वो समझता है कि हाँ it's him. By the way, आप कैमरा में देख सकते हो, there is this small bowls, 5 bowls if you can count, scattered as well. So yes, we have Saint Shepherd puppies at our home. We have a German Shepherd female who has given birth, or the pups are 32 days old now, just little over a month, and what they have started देयर पपी स्टार्टर फूड. एंड हम लोग जो है उसको स्टार्टर में इंडियन ब्रांड जो है ड्रूल्स का ही जो प्रीमियम खाना इनका सेक्शन है, सिलेक्ट सेक्शन, दैट्स कैनाइन क्रीक एडवांस्ड पेट न्यूट्रिशन. दैट इज़ व्हाट वी हैव स्टार्टेड देम ऑन. अपार्ट फ्रॉम दिस दे गेट देयर मदर्स मिल्क एट द सेम टाइम, अ बिट ऑफ लैक्टोजन पूरे दिन में 1 बॉटल, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज 3 से 4 बार तो ये लोग पेट फूड ही खा रहे हैं अभी फॉर द लास्ट 2 days. सो वी डोंट ओवर फीड आर पपीज़. डेफिनेटली ओवर फीडिंग इज़ अ वेरी बैड थिंग एट दिस स्टेज ऑफ देयर लाइफ. बीइंग 30 days old, 60 days old, or maybe 90 days old, 2-3 महीने के पपीज़, इफ़ यू ओवर फीड देम देयर इज़ दिस वेरी ह्यूज रिस्क ऑफ गेटिंग देम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्वो, विच इज़ अ वेरी डेडली वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन देयर गट. और एक बार अगर किसी पप को अगर पार्वो हो जाए, और इवन एन अडल्ट डॉग, इट्स नॉट restricted to a puppy, but since puppies do get their they are compared to an adult dog, puppies are the ones who get their vaccination. और वैक्सीनेशन से पहले अगर लूज मोशन शुरू हो जाए, let's say, it's very hard to save those puppies or keep those puppies alive. So anyone out there who wants to adopt a puppy, make sure you do not overfeed or let them eat anything which is not on their schedule to eat. कुछ भी उल्टा सीधा खा सकते हैं और उनसे उनका लूज मोशन शुरू हो सकता है. And since they are not fully vaccinated, it might become a problem that they can contract parvo. And as I said, parvo is one of the deadliest diseases that a dog can contract, and it's a life-threatening disease. So देखिए, मैंने I have already mixed the chicken and
द पेट फूड इज़ ऑलरेडी, जितना पानी सोक करना था, इट्स बिट हार्ड, इट्स च्यूएबल बट इट्स नॉट कम्प्लीटली ड्राई. नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल स्लोली ऐड इन द बॉइल्ड एग्स. मेक श्योर आप बॉइल्ड एग जो है अपने डॉग्स को, डजेंट मैटर इफ़ इट्स अ पपी और इट्स इन एज्ड, थोड़ा एल्डरली पपी हो या थोड़ा सा अगर यंग एज का भी हो, डू नॉट फीड द एग्स डायरेक्टली बिकॉज डॉग्स जनरली आर अ वेरी, दे डू नॉट च्यू देयर फूड, दे आर अ वेरी, हाउ डू यू पुट इट, बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं and they do not like to chew, they gobble up their food. So you have to make sure as a pet owner that you crush their food so that when if they try to gobble their food without even chewing, वो उनके digestive system में जाके उनको problem ना करे. We have faced this issue previously जब एकदम हमारा सेंट बर्नार्ड छोटा सा था एकदम, he was around 6 month 5 month, he did not used to chew food. तो उसके स्टूल फॉर्मेशन में वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आती थी, डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होता था, खाना खा भले ही लेता था पर उसके शरीर को कुछ भी उसको लगता नहीं था एकदम. देखिए इस तरीके से मैंने बॉइल्ड एग्स को मिक्स कर दिया है. अब इसमें थोड़ा सा जो मैंने चिकन बॉयल किया था, उस बॉइल्ड चिकन का थोड़ा सा इसमें पानी जो बचा हुआ है वो मैं ऐड कर दूंगा ताकि थोड़ा सा जो है इसका पूरा खाना थोड़ा सा लूज़ हो जाए, एकदम ड्राई ना रहे. So the recommended entire diet that has been given to this for this सेंट बर्नार्ड इज़, इस पूरे कंटेनर को भर के उसको खाना खिलाना है. बट अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ इट्स एंड ऑफ मे, जून शुरू होने वाला है. दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ नॉट स्विट्ज़रलैंड और इवन अ कोल्डर क्लाइमेट रीजन. यहाँ पे क्या है, इसको धीरे धीरे ही इसकी डाइट बढ़ेगी. सो हम लोग पूरा जो है भर के खाना इसको खिला अगर दे भी तो ये खाएगा नहीं अभी, सिंस ही इज़ अंडर हैवी मेडिकेशन. एंड व्हेन आई से हैवी मेडिकेशन, he has been recommended that before khana he has to be given this gut care powder. It's a prebiotic high protein potency supplement for pets. This is what gut care, अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी. एंड एट द सेम टाइम खाने से हाफ एन आवर पहले ये और एप्टिक्विक बोल के एक सोल्यूशन आता है, लिक्विड है, सिरप है, ब्यूक्लिजाइन सिरप. ये सिरप 15 ml ट्वाइस ए डे और 5 ग्राम्स गट केयर ट्वाइस ए डे खाने से हाफ एन आवर पहले खिलाना है. उसके बाद फिर इसको लंच या डिनर देना है. ऑल्दो वी डू ऑफ्टन हियर कि हाँ कुत्ते हैं या बिल्लियाँ हैं तो इनको 2 बार ही खाना खिलाना होता है, उससे ज़्यादा नहीं. बट दैट्स अ वेरी रॉन्ग मिथ. यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे इंसानों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स अपीयर करती हैं वैसे जानवरों में भी करती है. सो यू हैव टू इंश्योर दैट योर डॉग्स और योर कैट्स और एनी पेट दैट यू ओन, उनका पेट जो है खाली नहीं जाना चाहिए. अगर पेट खाली रहेगा, दे विल go through that gastric trouble as what humans go through. So what we have done is we spoke to our dog consultant Saurav and he recommended कि सुबह और शाम के टाइम पे, जैसे हमारी जो चाय की टाइम होती है या सुबह जब हम लोग का नाश्ते का टाइम होता है, नाश्ते के टाइम में ब्रेकफास्ट में उसे 500 ml मिल्क, 8 पीस ब्रेड और 2 बॉइल्ड एग without the yolk, because yolk contains it doesn't have a lot of minerals, all it has is cholesterol, so it's complete, if we have to avoid it. शाम को भी जब उसे हम लोग चाय पीने बैठेंगे 5 बजे 6 बजे, एट द सेम टाइम उसे दूध और ब्रेड फिर से खिलाना है सप्लीमेंट के साथ. प्रोटीन सप्लीमेंट दिया गया है उसको, वो ज़्यादा नहीं देना है बिकॉज़ फूड के थ्रू ही उसको प्रोटीन इंटेक उसकी बढ़ानी है. सप्लीमेंट तो अभी फ़िलहाल दिया जा रहा है बिकॉज़ ही हैज़ गॉन
from 100 kgs to 50 kgs. He's not even 50, he doesn't look even 50. He looks 40 kilo, 45 kilo. He's very sick right now. So as you can see, खाना इसका तैयार हो चुका है और अब मैं जाके उसको दे दूँगा खाना, and we'll talk about the evening food later on.